First of all, very good morning to all of you. Good morning, sir. How are you doing? I hope you are all fine and doing well in your life. So, as Anil sir said that today is a black day in the history of India. It is a black day. Why we are calling it a black day? What happened on this day? Do you know what happened on this day? Just Anil sir told you about that. Why we celebrate it as a black day? Because on this day, 14 February 2019, what happened? Our 40 CRPF soldiers were martyred. Martyred means they sacrificed their life for the nation. So it is really a sad day for us. First of all, I would like to pay my tribute all those martyred who laid down their life for the sake of nation. They sacrificed their life for us. They are the protector of our nation. They are doing anything. They are doing whatever they are doing, sacrificing their life for the nation. There is no personal enemy. They are just sacrificing their life for the nation. So we should be thankful for that. So as we are also celebrating today another festival that is dedicated to which festival? What festival we are celebrating today? Basant Panchami. It is also called spring seasons. It indicates the beginning of spring seasons. So that is the importance of today day. That is the importance of on this day. So another thing that I want to say, as your exams are approaching, and it is very crucial time for you. It is very crucial time for you to study, because only I would say just 15 days are left. If we talk about your time left, that is only 15 days are left for your exam. So I request all the students and even the parents, kindly pay attention to your children, how they are devoting their time, because these 15 days are very important for your examination. Whatever you might have studied in the year, throughout the year, it is the time to revise. It is the time to revise all the lesson that you have learned throughout the year. So do not waste this time. Please focus on your study, concentrate. It is very crucial time even for the 8th class students. How much time, whatever time you can dedicate to your study, you should give this time. It will decide your marks. If you will not study these 15 or 16 days, even if you would have studied throughout the year, it would be of no use. If you will not revise that content, if you will not revise whatever you have studied during the year. So what I am saying, please revise a lot. It is time to revise whatever you have learned. So these are the things that I want to share with you all. So thank you. To invite Principal Sir
to express their views on the stage. Please come on the stage. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. How's the Josh? How the Josh? अरे सेमी हियर. Hi, sir. सारे एक साथ बोलेंगे हाउ द जोश. Hi, sir. हाउ's द जोश. Hi, sir. हाउ इज द जोश. Hi, sir. वेरी गुड. सो सारे टीचर्स अभी आपके सामने बोले. उन्होंने कुछ ना कुछ आपको आज के दिन के बारे में महत्वपूर्ण बताया कि नहीं बताया. ठीक है. सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान यहाँ पे लाओ. बचपन से आते डालने की कोशिश करो. यहाँ पे तमाशा नहीं होता है. हम सिर्फ बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं. और अगर बच्चे ही नहीं सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा टाइम वेस्टेज करने का कोई फ़ायदा होगा. और बड़े बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा. आपको पता है कि आज 2-3 दिन है. ठीक है. एक जो अंग्रेज़ लोग हैं उनका वैलेंटाइन डे है. ठीक है. एक हमारा हिंदुओं का बसंत पंचमी है. और एक ये हमारे साथ एक ब्लैक डे भी बन गया. ठीक है. ऐसा दिन जिसको हम भूल नहीं सकते. क्योंकि भूल क्यों नहीं सकते उसको काला दिन कहते हैं. ब्लैक डे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के 17 जवान जो थे 40 जवान शहीद हो गए थे. सॉरी वो 17 वाला दूसरा था इंसिडेंट. 40 जवान शहीद हो गए थे इन पुलवामा अटैक. पुलवामा जो है श्रीनगर का एक इलाका है. वहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हमला किया. और जो गाड़ी की कानवाई चल रही थी, जो गाड़ियों का इकट्ठा जत्था जाता है ना, वो जत्था जा रहा था. और वो जो 40 जवान थे उनके चिथड़े जो हैं उन्होंने कर दिए और वो शहीद हो गए. तो अब ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ब्लैक डे क्यों है? ऐसे आपको पता है हमने बड़े सारे युद्ध लड़े. पता है ना आपको. हमने आज़ादी से पहले बहुत सारे युद्ध लड़े. अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़े. लाखों लोग मारे गए. आज़ादी के बाद हमने आज़ादी के बाद जस्ट साथ में हमने 1947 का भी एक युद्ध ही लड़ा. उसके बाद हमने 1965 में लड़ा, 1962 में लड़ा, 1971 में लड़ा, 1999 में भी लड़ा. एक युद्ध हमारा चीन के साथ था. और 3 युद्ध जो हमारे थे वो पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली युद्ध थे. हमने बहुत सारे जवानों को खोया. लेकिन हम उनको ब्लैक डे नहीं कहते. हम उस दिन को ब्लैक डे नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो युद्ध था. आमने सामने की टक्कर थी, हमने की. काला दिन वो था जब हमें पता भी नहीं था कि कौन हमारे ऊपर हमला करने वाला है. और जिस बात का हमें आवाज़ नहीं था, कायरतापूर्वक हमारे ऊपर हमला किया गया. और हमारे जो 40 जवान थे वो शहादत को प्राप्त हुए. इसलिए ये काला दिन है. अगर लड़ाई हो तो फिर वो काला दिन नहीं होता. वो तो बहादुरी दिखाने का वक्त होता है, अपने देश के लिए जज्बा दिखाने का वक्त होता है. इसलिए वो काला दिन नहीं होता. काला दिन वो होता है जब हम शांतिपूर्वक अपने ही देश में गुजर रहे हैं और कुछ काले भेड़िए मौके का फ़ायदा उठाकर जब किसी की हत्या कर देते हैं तो वो दुखद घटना होती है. और आप सोचो 40 जवान एक साथ शहीद हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है. और दूसरा मैंने कहा बसंत पंचमी है, यानी सरस्वती माता का दिन. तो सरस्वती माता का दिन है तो हमें एक ही मैसेज लेना है सरस्वती माता से. पढ़ाई ज्ञान. पढ़ाई ज्ञान. पढ़ाई क्या है? ज्ञान है. किसी बात का आभास होना, किसी बात को जानना ज्ञान कहलाता है.
मैंने जैसे मान के चलो, मैं अभी सुबह सर से बात कर रहा था, यहाँ पे देखो कल हमने यहाँ पे कनेक्शन फिट करवाया छत पे, सारे बच्चों को दिख रहा है? वहाँ पे एक लंबी सी पाइप लगी हुई है। और जैसा कि आप, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो पाइप है, इतनी लंबी पाइप खाली ऐसे क्यों टांगी हुई है? क्योंकि हमने बाकी वाला पानी जो नीचे लाना है। क्या कोई बच्चा बता सकता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकता। जब आपको इस बात के बारे में पता चल जाएगा, ये बहुत बड़ा एक टेक्निक है, साइंस है, इसके बिना आपका जो स्कूल का वाटर सिस्टम है वो नहीं चलेगा। तो ये ही नॉलेज होता है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसके बाद जब आपको पता चल गया, आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, तो उसी को ज्ञान कहते हैं, यानी किसी बात के बारे में पता होना। चलो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो खाली पाइप लगाई हुई है, ये इसमें से हवा निकालने के लिए है। हवा बहुत ज़रूरी है। सोचो, इतनी छत पे हमने एक टंकी को लटका के रखा हुआ है। अगर ये वाला गैस निकालने के लिए अगर हम इसको जगह नहीं छोड़ेंगे तो पानी का फ्लो नहीं चलता, पानी नहीं चलता। पहली बात ये। अब इसको इतना लंबा क्यों रखा हुआ है? हम छोटा सा भी तो रख सकते थे ना सुराख। लंबा इसलिए रखा है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर जब टंकी फुल होगी और टंकी को नीचे से हमने कनेक्शन निकाला हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से, नीचे से, ग्राउंड से निकाला हुआ है, तो क्या होगा? पानी का फ्लो, जब टंकी भरेगी पानी निकलता जाएगा, छोटा सा सुराख होगा, खुला होगा, तो पानी लीक होगा। इसलिए हमने टंकी से भी ऊंचा रखा है उसको, ताकि टंकी फुल हो जाए, पाइप भी फुल हो जाए, लेकिन पाइप से आउटफ्लो ना हो जाए। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। देखो एक छोटा सा तरीका और लगाया। नॉलेज, साइंस, टेक्निक्स, ये किससे आती हैं? ज्ञान से आती हैं। जब कल हमने यहाँ पे फिटिंग करवाई, आपको पता है ये स्कूल है ना? यहाँ पे बहुत सारे दिन पानी की सप्लाई आएगी, लेकिन स्कूल बंद रहेगा, तो पानी का आपको पता है वेस्टेज हो सकता है। और मैंने कहा पानी इज़ वेरी लिमिट, तो पानी का अभाव बहुत ज़्यादा है। हार्डली 1% जो हमारी ज़मीन पे जो पीने योग्य पानी है, और अगर वो भी वेस्ट हो जाएगा तो भाई हमारे लिए जो पानी का प्रबंध कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमने पानी का वेस्टेज ना हो, जब 2 महीने छुट्टियां रहेंगी, हमने एक बड़ी अच्छी, उसमें एक बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया है। आई थिंक, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है, उसको हम कहते हैं फ्लोट वाल। ध्यान से सुनना भाई, इस टंकी के अंदर हमने एक फ्लोट वाल लगाया। फ्लोट वाल पता क्या है? हमने प्लास्टिक के गुब्बारे की तरह कुछ चीज़ रखी, ठीक है। जब टंकी खाली है तो वो ऐसे नीचे लटकेगा, जो मैंने कल उठाया भी था हाथ में, किसी बच्चे ने देखा होगा, वाइट सा था, ठीक है। ऐसे वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है, और पानी जो है अंदर आ रहा है। जैसे जैसे टंकी भरती जाएगी, वो फ्लोट बाल ऊपर की तरफ होता जाएगा, ऊपर की तरफ होता जाएगा, और क्या होगा? उसको वो ब्लॉक कर देगा पीछे से। जैसे टंकी फुल होगी, इतनी प्रेशर पानी का, आपको पता है इतना प्रेशर उसको डूबने थोड़ी देगा, प्लास्टिक नहीं डूबता, वो उसको ऊपर धकेल लेगा, और वो ऊपर से जो उसका वाल है वो बंद हो जाएगा, और पीछे से जो भी पानी, एक्स्ट्रा पानी जो वेस्ट होना था, वो बंद हो जाएगा। देखो, छोटा सा देसी जुगाड़ जिसको हम कहते हैं, छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कितनी हेल्पफुल है। 2 महीने पानी, 2 महीने छुट्टियाँ, उसमें हम, मुझे लगता है हार्डली 500, 1000, 2000, पता नहीं कितना, 4000, कितने लीटर पानी हम वेस्ट कर सकते थे, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होना था। वो पानी हम दूसरे घर में यूज़ करवा सकते हैं इस तरीके से। इसी को ज्ञान कहते हैं। किसी बात के बारे में पता होना, पहले आपको नहीं पता है, बाद में आपको पता है, यही जो है क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। बस आपको यही ज्ञान प्राप्त करना है, यही क्या है। और जो आपको पता है, विद्या की देवी है, सरस्वती माता हैं, ठीक है, उन्हीं का आज दिन है। और सरस्वती माता क्या कहती हैं कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, पैसा बांटने से कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान बांटने से कभी भी कम नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखना, जो दूसरों को जितना पढ़ाएगा, जितना ज्ञान बांटेगा, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ, अभी छोटू सी बात बताई, इसी तरीके से आप जितनी बातें दूसरों को सिखाओगे, आपको उस अगले वाले को 50% आएंगी, आपको 100 आएंगी, यानी उससे डबल आपको आने वाली हैं। ये बेनिफिट है। और शिवाली मैम ने अभी आपको पहले कहा कि पूरी जो क्या है आपकी गीता,
हमारा पवित्र ग्रंथ, हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, उसमें श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था कि कर्म करते रहो। कर्म यानी काम करते रहो, फल की इच्छा छोड़ दो। यानी आपका काम मेहनत करना है, नंबर कितने आएंगे, मार्क्स कितने मिलेंगे, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। आपका काम है डेली पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, कंटिन्यू पढ़ाई करना। फल की इच्छा नहीं करनी है। क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या समझ लो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। और यार ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर हम पढ़ाई डेली पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा ना, अच्छा ही आएगा ना। अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। एक होते हैं दुष्कर्म, एक होते हैं सत्कर्म। सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, दुष्कर्म यानी बुरे कर्म, ठीक है। तो अच्छे कर्म करो। आप देखो, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, चोरी करोगे तो क्या रिजल्ट होएगा उसका? मार, इंसल्ट, बेइज्जती, जेल, यही होएगा। और अच्छा काम करोगे कोई, अगर मान के चलो कहीं पे आपने वाटर कूलर लगा दिया, अभी आपको पता गर्मियों का दिन आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे लोग? हे भगवान, जिसने भी ये वाटर कूलर लगाया, बड़ी बार लोग बोलते हैं भगवान तेरा भला करे, किसी को पानी पिला दे। तो उसका क्या होगा? अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आप और इंस्पायर होगे, आपको और अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, भगवान की दुआ मिलेगी, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और ज़िंदगी में आप उससे भी बड़े बड़े अच्छे काम करोगे, और आप एक प्योर ह्यूमन बीइंग कहलाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है? सत्कर्म करने हैं, फल की इच्छा किए बिना। और ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा छोड़ दो। सारे बड़े बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे हैं, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो। समझ आई बात आपको? और नेक्स्ट इसके बाद यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 15 दिन बचे हैं आपके, देखो आज भी बहुत सारे बच्चे कम आए हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बात कह देता हूँ कि 15 दिन बचे हैं भाई, प्लीज़ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। और मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूँ कि ये 15 दिन है, जितनी मेहनत करवा सकते हो अपने बच्चों को पढ़ाई में इंडल्ज कर सकते हो करिए। और बच्चों को भी कहता हूँ जितनी मेहनत कर सकते हो आप करिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। समझ आई बात आपको? थैंक यू। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो सभी बच्चे पूछते हैं कि भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है कि जो हमारे काम आए और हमें क्या सीख मिलती है उसमें से। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं। तो भगवत गीता के अध्याय में लिखा है कि उसमें भगवत गीता में बच्चों के लिए बहुत सीख है। बस वो भगवान जो है हमें वो सीख डायरेक्टली नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली उसमें कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। तो उसमें भगवत गीता के एक अध्याय में लिखा है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि आपका जो लड़ाई करना, आप एक क्षत्रिय हो और लड़ाई करना आपका धर्म है। तो वैसे ही हम सब क्या है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या करना है कि पढ़ाई करना हमारा धर्म है, और हमने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। और एक बात, और एक और बात लिखी गई है भागवत गीता में कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कि हमने क्या करना है कि हमने अपनी लाइफ में पढ़ते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। मतलब कि हमने जो है रिज़ल्ट की टेंशन नहीं करनी है। आपका एक क्लास का रिज़ल्ट जो है आपकी पूरी साल की मेहनत, पूरी लाइफ की मेहनत नहीं बता सकता है। हमने क्या करना है कि कर्म करते जाना है, फल की टेंशन नहीं करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज पता ना कौन सा दिन है? कौन सा? उसके साथ एक और भी है। क्या हुआ था इस दिन? पुलवामा अटैक। कब हुआ था पुलवामा अटैक? आगे बताओ, आगे। 14 फरवरी 2019। इस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। कितने शहीद हुए थे? 40। सबसे पहले उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमारी देश की खातिर जान दी थी।
तो उसके बाद एक और बसंत पंचमी है ना। और इस कुछ समझ नहीं आ रहा। बस उसके बाद आपकी पढ़ाई पर आपके एग्ज़ाम भी आ गए हैं, तो एग्ज़ाम मेहनत करो एग्ज़ाम के लिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ना सब लोग एक ही आंसर दे देते हो, क्लास में भी प्रेयर में भी, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता मेरा गलत है या सही है। एक ही रिपीट, एक आंसर एक बच्चा देगा तो उसके पीछे पूरी क्लास वही आंसर दे देगी, पता नहीं होता अपने ऊपर कि मेरा सही है या गलत है। बस एक ने दिया उस पर ही विश्वास रखते हो आप लोग, अपने ऊपर आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरा आंसर है या मेरा गलत हो रहा है। नहीं, वो इसी का मेरा दोस्त ने दिया यार उसने सही दिया होगा, आप वही आंसर रिपीट करते हो। आप चाहे गलत बोलो या सही बोलो, अपना देना चाहिए जो आपको पता होता है, एक दूसरे का रिपीट नहीं करना। बस थैंक यू। सर्दियों जो है उनके ख़त्म होने का आगमन और नए उसके सर्दियाँ जो है उनका समापन और बसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसमें पेड़ों पे जो है पतझड़ के मौसम में पत्ते वगैरह जो गिर गए हैं वो आते हैं, नए फूल फल पत्ते। और साथ में इस दिन जो है माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, तो इस दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन भी होता है। तो इसलिए यह दिन जो है बहुत ख़ास है, क्योंकि इस दिन माँ हमारी सरस्वती जो विद्या ज्ञान और कला संगीत के जिनको देवी माना जाता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो जब वो अपने द्वारा निर्मित किए गए संसार को देखने आए तो उन्होंने देखा कि सब मौन है, जानवर सारे इंसान सुनसान है, पूरा सब मौन है। तो उनको अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि का निर्माण में उनको लगा कि स्वर की कमी है, तो उन्होंने अपने कमंडल से पृथ्वी पे जो है जल छिड़का, जिससे कारण जो है माँ सरस्वती की जिनकी 4 भुजाएं हैं उनका जन्म हुआ, जिनको उन्होंने नाम दिया सरस्वती। और फिर उन्होंने उनसे बोला कि अपनी जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके एक भुजाओं में जिनकी एक बाजू में जो है बीना, एक में माला, एक में पुस्तक और एक में एक हाथ जो है वर मुद्रा में, उन्होंने उनसे ब्रह्मा जी ने उनसे आग्रह किया कि अपनी जो है बीना को बजा के जो है इस संसार को जो है ध्वनि से जो है तरह के क्या बोलते इस संसार को अपने जो है बीना बजाकर इस संसार को जो है ध्वनि प्रदान करो।